76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఇవి ఢిల్లీలో కర్తవ్య పథ్లో జరిగాయి. కర్తవ్య పథ్ అంటే రాష్ట్రపతి భవనం నుంచి ఇండియా గేట్ వరకు ఉండే మధ్య మార్గాన్ని కర్తవ్య పథ్ అంటారు. ఢిల్లీలో ఇది చాలా పెద్ద పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఒక్కరోజు జనవరి 26 కోసం నెల రోజులు ముందుగానే ఈ పండగ మొదలవుతుంది. వివిధ దళాల వారు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. పోలీసులు, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, సిఆర్పిఎఫ్ ఇలా అన్ని దళాల వారు నెల రోజులు ముందుగానే ప్రొద్దున్నే 5 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు చలిలో చాలా కష్టపడి కాపలా కాస్తూ ఉంటారు. ప్రాక్టీసులు చేస్తూ ఉంటారు. జనవరి 26న పెద్ద పండగ. ఢిల్లీలో రోడ్ల మీద అడుగడుగున పోలీసు బలగాలు మోహరిస్తుంటారు. ప్రజలు చూడటానికి 2 కళ్ళు సరిపోవు. రోడ్లు అంత అందంగా అలంకరిస్తారు. మనము చూడటానికి వెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా పాస్ ఉండాలి. మేము ఉదయాన్నే 5 గంటలకు లేచి స్నానపానాలు చేసుకొని 7:30 బయలుదేరి వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి 8:30 అయింది. చెకింగ్లు ఎక్కువగా ఉండటం ఆలస్యమైంది. సూర్యుని భగభగ మొదలైంది. చూడటానికి జనాలు నిండిపోయారు. ఎండ మండిపోతుంది. కొన్ని కష్టమైనా ఇష్టంగానే ఉంటాయి. ఆ జనాల్ని చూడగానే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ప్రేక్షకులు లక్షల్లో ఉన్నారు. మాకు ఎదురుగా ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి, ఇంకా కేంద్ర మంత్రులు, అందులో మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అందరికీ పలకరింపులు మొదలైనాయి. ఒక ప్రక్క ఎంపీలు కూడా ఉన్నారు. మొదటిగా కేంద్ర మంత్రులు, ఎంపీలు వారి వారి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చారు. తరువాత మోడీ గారు బాగా మేకప్ వేసుకొని తల బాగా అందంగా చుట్టుకొని 9 గంటలకి వస్తానన్న పిఎం దర్జాగా 10-15 నిమిషాలకి వచ్చారు. అందరికీ ఎండ బాగా తగిలింది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి గారు గుర్రాల రథం మీద వచ్చారు. ఆమెకు అందరూ ఆహ్వానం పలికారు. తరువాత జనగణమన మొదలైంది. ఆ తరువాత మిగతా కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి. ఎవ్వరికీ ఒక్క మంచినీళ్ళు బాటిల్ కూడా తీసుకువెళ్ళనివ్వలేదు. కొంతమందికి మేకప్ సామాన్లు తీసేసుకున్నారు. కొన్ని కాయిన్స్ కూడా తీసుకున్నారు. మా వారిది ఖరీదైన పెన్ను కూడా తీసుకున్నారు, మరి ఇవ్వలేదు. ఈ కార్యక్రమాల్లో వివిధ రాష్ట్రాల 31 శకటాలు ఉన్నాయి. అందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ శకటం ఏటికొప్పాక బొమ్మలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఆకట్టుకున్న నారీ ప్రదర్శన, Our hearts are warmed by the pride and patriotism that this day inspires. On this glorious morning, the spirit of India soars anew. 51 మంది మహిళా పైలట్లు ఆకట్టుకున్న నారీ ప్రదర్శన ఆకర్షణగా నిలిచింది. వివిధ రాష్ట్రాల శకటాల ప్రదర్శన జరిగాయి. పైన హెలికాప్టర్ల ద్వారా క్రిందనున్న మాపైకి పూలు చల్లారు. ఇది చాలా సరదాగా అనిపించింది. అందులో ఎన్నో రకాల శకటాలు చాలా అందంగా అలంకరించి అందరినీ చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి. జనాలు కనీసం దగ్గర నీళ్లు కూడా లేవు. నీళ్లు త్రాగాలంటే కొంత దూరం వెళ్ళి త్రాగాలి. 5,000 మంది కళాకారులు హైలైట్గా నిలిచారు.
ఆకట్టుకున్న మిసైల్ సిస్టమ్స్ Ladies and gentlemen, అవి కూడా చాలా coming back to వచ్చాయి. the account of the arduous journey to India's independence మేము and the subsequent చూడటానికి formation of the వెళ్ళాము. republic. Post-independence పరేడ్ from British rule, జనవరి the 26 nation embarked పరేడ్కి on tasks మాకు of building జరిగిన and అనుభవాలు, consolidating, మేము led by చూసిన Sardar వింతలు, Vallabhbhai Patel. విశేషాలు మీతో The పంచుకోవటానికి monumental ఇలా task of వీడియో drafting the constitution was పెట్టాను. undertaken under నచ్చితే the లైక్ chairmanship of చేయండి, Dr. B.R. Ambedkar. సబ్స్క్రైబ్ కూడా The Constituent చేసుకోండి. Assembly deliberated in ఇంకా sessions చాలా that were open ఉంది, to the public మిగతాది for మీరే 166 చూడండి. days, spread over a period of 2 years, 11 months, and 18 days to draft the Constitution, which was adopted on 26th November 1949 and came into effect on 26 January 1950, heralding the birth of the sovereign democratic republic of India. This day enshrined the principles of justice में उपस्थित है। आइए हम राष्ट्र के प्रति अद्वितीय सेवा के लिए नौसेना के पुरुष और महिलाओं का, कार्मिकों का अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, now let us talk about the Indian Air Force. Beyond its primary role of safeguarding our skies, it has emerged as a beacon of hope in times of crisis, both nationally and internationally. The Indian Air Force has consistently been at the forefront of humanitarian aid and disaster relief operations, extending its reach beyond national boundaries. Whether it is assisting the state governments during forest fires in Tamil Nadu and Uttarakhand, providing vital support during cyclones, floods and other natural calamities, or conducting casualty evacuation operations, the Indian Air Force has been a lifeline in times of need. By deploying the National Disaster Relief Forces and the State Disaster Relief Forces personnel, airlifting essential relief materials, and rescuing countless lives, the Indian Air Force continues to demonstrate its unwavering commitment to service. In line with India's growing global stature, the Indian Air Force is in the process of establishing 6 new defense wings, starting with Spain, Armenia, and Ivory Coast. और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह जी का 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 35 वर्षों से अधिक की उत्कृष्ट सेवाओं के दौरान आपने अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। रक्षा सचिव के आगमन के बाद एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना अध्यक्ष का आगमन होते हुए और उनके ठीक पीछे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष महोदय के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, थल सेनाध्यक्ष और थल सेनाध्यक्ष के आगमन के बाद यहाँ आगमन होगा जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष और इसी बीच शानदार घोड़ों पर सवार सजीले अंगरक्षकों के साथ देश की माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए पारंपरिक बग्घी में आज उनका पुनः आगमन होगा। देवी और सज्जनों, अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी है। 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच हमारे मध्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए माननीय राष्ट्रपति जी की पारंपरिक बग्घी के दाहिनी ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल विशिष्ट सेवा मेडल अपने घोड़े ग्लोरियस पर और बाईं ओर सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह। और इसी बीच देश के माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी का आगमन होता हुआ देश के माननीय रक्षा राज्य मंत्री के पश्चात देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कर्तव्य पथ पर पहुंचते हुए माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, जिनके मार्गदर्शन में समर्थ भारत की सक्षम सेनाएं रक्षा आत्मनिर्भरता के नए शिखर चढ़ रही हैं, स्वावलंबन के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। भारतवासी हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी
हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ देशवासियों की ओर से अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री का सलामी मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ 76वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन अमर सपूतों की याद में राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। हवाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश संकेत दे रहा है लोकतंत्र की जननी भारत के सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री जी के आगमन का, जिनका स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री करेंगे और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे। दुनिया के 20 श्रेष्ठतम देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर, भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालक, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हृदय में 140 करोड़ दिलों की प्रीत है। निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की रीत है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और अब वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माहौल में एक नया जोश, एक नई उत्सुकता मां भारती के लाडले हमारे प्रेरणा पुंज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ते हुए। देशवासी, हमारा देश फूल अनेक गुलदस्ता एक है, राज्य अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। विश्व शांति एवं एकता का यह प्रतीक हमारा राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड, वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुण बाबू पी कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। पाइप एवं ड्रम बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। यह बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्ट सेंटर के संगीतकार शामिल हैं। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान याद आता है। भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की धरती, उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। गर्व कीजिए कि हम भारतवासी हैं। और इसी बीच मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए देश की उपराष्ट्रपति की मधुर ध्वनि संकेत दे रही है भारत माननीय राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को खुशी करेंगे Thank you.
देशवासियों, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का श्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति होने का स्वागत करते हैं। मंच की तरफ बढ़ते हुए गौरवशाली अंगरक्षक गौरवशाली भवन की देखभाल करने लीडरशिप के कमान में इसके बारे में की जा रही है, लेकिन इस आदर्श भारत माता की जय। माननीय राष्ट्रपति जी समारोह में संबंधित दायित्व निभाने वाले सभी जवान पारंपरिक वर्दी में कर्तव्य पथ पर सैन्य बंधुक एवं अनुशासन की अद्भुत छटा बिखेरते हुए और अब आगमन हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual respect and cooperation. भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ हैं गणतंत्र दिवस 2025 के हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्राबोवो सुबियांतो। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हुए हमारे मुख्य अतिथि का और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया वहां उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पालुलेकर एवं मेजर अविनाश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय के ADC के पद पर तैनात हैं। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute.
और अब कमांडेंट देखिए और सज्जनों, एक खूबसूरत फ्लाई पास्ट विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। सही है जनरल हरमीत दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन की पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड किया। आपने एक माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेनाध्यक्ष सचिवालय शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ,
कोर हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ अपॉइंटमेंट्स आपने निर्वहित किए। इन्फेंट्री स्कूल तथा काउंटर इंसर्जेंसी में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर भी रह चुके हैं। आपने अफगानिस्तान में भी एक मिशन किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम से आर्मी स्कूल ऑफ एम्बिशंस में कोर्स किया है। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अधिक। Following the parade commander is the parade Sec Mehta Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of Denobli School Dhanbad, St. Michael's School Patna, NDA and INA. The general officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointment in the Mechanized Forces Directorate and MS branch at Army Headquarters. UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course and Embassy, Nairobi. A proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th November 2023. साहस से शोभित तरुणाई, भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा। सलाद काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा। जूझे चुनौतियों से आने ना आज वतन पर, सीने पर हंस जोड़ी खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूकर बुलंदियां सर्विस हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपको चाहिए, ये और सर्वोच्च बहादुरी पुस्तक, परम शीर्षक एवं अशोक चक्र, ये दक्षिण यादव परम शीर्षक सेवानिवृत्त, अशोक चक्र सेवानिवृत्त, परम शीर्षक युद्ध में बाजी लगाने वाला सैनिक को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता PNI हिंदी का दुर्गल का यानी विविधता में एकता भावना भटकाए। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता। रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का खेल बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था दिया। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ। रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों का हमारी मित्रता की गहरी जड़ें खोज, परंपरा और विश्वास की धुन भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का रंग, विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग। देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों का। ये वतन परत की श्रद्धा है, शामिल इसमें भगवान हुए, झांसी जैसे कितने तीरथ और हल्दी घाटी धाम हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों
दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। 12 अर्जुन पुरस्कार, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट आदर्श युद्ध भूमि का देश अधिक अपराजय रूप रहा है। कर्तव्य पथ पर आज किसी गर्जना का प्रतिरूप हर बात को सहकर जो विजय का मार्ग दिखाए, किसान का संपूर्ण राष्ट्र का गर्व करता है। मैकेनाइज्ड कॉलोनी में मुख्य युद्ध टैंक T-90 गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के छोटे हाथों में T-90 भी भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है। हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया, जिसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन, लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक राष्ट्रीय समय की 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। तरह को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर। और अब आप देखिए एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाविक और BMP-2 तारक की टुकड़ी टुमारो आप ऑन स्टेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17 बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कृतिक चौधरी के हाथों में नाविक एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, इसमें क्रूलेस सड़क है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। नाविक के ठीक पीछे देखा BMP-2 तारक नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 20 बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में तारक जन हमले सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्करर एंटी टैंक मिसाइल के लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry columns. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN mission. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Tihar, and Specialist Mobility Vehicle Kapitwal, led by Nayak Subedar Charan Singh. These vehicles designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Air Hour, led by Lieutenant Abhijit Ahlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high intensity combat. Parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called the Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called the Silpurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishti Sharma and Major Radhika Sen. पहरेदार हिमालय के हम धोखे हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद
अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य, सबसे आगे, सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक्य, वीरावेल, बैटरीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। Rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Choniar of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agniban rolls past the saluting deck, it stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian artillery. Approaching the saluting days next with an air of authority is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system exemplifying seamless fusion of technology and tactical power. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the SS planes of 134 Chakra Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shukita Datta of DGIS, the SS Mountains, commanded by Major Vikas. Next we witness the impressive assault weapon system commanded by Lieutenant Mansur Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain Sharmisha Datta of 50 Light Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Chaturvedi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. The successful development and induction of the assault weapon system signifies a major leap towards centralized defence production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर दिखते नजर आए। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों में पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की वजह से पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा में मुझे यकीन की आसमान कम है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट छात्रों माध्यमिक टुकड़ी युवा और जीवन नेतृत्व जम्मू कश्मीर एवं पंजाब निदेशालय के कमांडर रण डॉक्टर एकता कुमारी द्वारा आज देश में लगभग 40% युवा छात्राएं एनसीसी का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसके पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंड संगीत जैसी अनुभूति है, आराधना है, अरदास है। अगला दस्ता एनसीसी के संयुक्त बैंड का नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमारी द्वारा आनंद लीजिए राष्ट्रवादी गुणों की अद्भुत प्रस्तुति का युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। अगला दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र कैडेट्स का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद द्वारा। इसमें देश के सभी 17 निदेशालयों के 148 युवा कैडेट शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन 20 लाख कैडेट से अधिक कैडेट के माध्यम से एकता और अनुशासन के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान देता नेशनल कैडेट फोर्स
Mounting proudly the National Service Field Contingent, led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab, comprising 148 volunteers, launched in 1969, Gandhiji's birth centenary year with nearly 40,000 volunteers, its team now with more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS movement, silent revolution and constructive community work, it has made significant contributions to the field of literacy, environment preservation and health education, participating in the Republic Day Parade since 1988. The NSS, ladies and gentlemen, each step forward. मुझसे ललकार भर के है भारत के सेना ने आज विश्व का सिरमौर बिहार देने और सजनों आपके सामने मद्रास रेजिमेंट सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंट सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता समान संभालिए अस्पताल मेजर सचिवन ने इस दस्ते में 94 संगीतकार शामिल हैं. Now coming up the line of beautiful tableaus highlighting the theme of Swarnim Bharat, Virasat और representing diverse professions. जोहार भारत के पायका नृत्य के साथ the Jharkhand tableau showcase. तुझे प्रणाम गौमैया तुझे प्रणाम दूध दही घी और माखन अमृत काल में अमृत घर आंगन हर योग में संयोग में माँ तू ही आती का पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान
Madhya Pradesh showcasing उत्तर प्रदेश का गुणगान, अर्थव्यवस्था विकास और महाकुंभ में जगमग करते दिए प्रदर्शित उत्तर प्रदेश की झांकी पर चमक रहे सलामी मंच के सर्वसिद्धि प्रदः कुंभा, सर्वसिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की भांतरी तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय नवीन भारत का उदय। झांकी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, कार्बन मुक्त भविष्य, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। Musical legacy and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree composing hymns included in the Guru Granth Sahib. Gopaka wooden toys, a 400-year-old craft tradition. Recognized with its geographical indication tag in 2017, the toys symbolize authenticity and cultural heritage. These toys rely on the Ankuru tree and represent sustainability. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका के शक्तिशाली गाथा प्रस्तुत करती
सखी